हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनगाथा टाइम्स। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी दिखाते रहें। फर्स्ट वील टॉक अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वी शैल डील विद चार्जेस इन मोशन। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात की, जिसमें हमने बात किया चार्जेस एट रेस्ट पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चार्जेस इन मोशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and the SI unit of electric current is ampere, and electric current is said to be 1 ampere if charge of 1 coulomb flows across any of its cross section in 1 second. Now we'll talk about electric current in a conductor. अब सारे जो conductors हैं उनमें free electrons हैं, and these free electrons they appear to have velocities in all possible directions, पर there is no net flow of charge across any cross section of the conductors. That is, no current flows in an isolated conductor in absence of any electric potential. पर अगर हम ऐसे circumstances create कर दें कि free electrons हैं जो they get drifted in one direction only, then there will be net flow of charge. और वो हम कैसे कर सकते हैं? By connecting it to a dry cell or a battery. Now whenever a conductor it is connected to a dry cell or the battery, जो ये क्या फिर ये बैटरी या ड्राई सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नेसेसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, एंड द फ्लो ऑफ चार्जेस अकर्स इन वन डायरेक्शन, एंड दिस फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूसेस द करंट. Now we'll talk about the formula used to calculate the electric current. Current is denoted as I. So the formula for electric current is equal to charge over time. I is equal to Q divided by T. The Q is the charge and T is the time. And the SI unit of electric current is amperes. That is, the current is measured in amperes and it is denoted as capital A. Now for example, calculate the current when 20 coulombs of charge pass a point in 8 seconds. So to calculate it, we will divide 20 coulombs by 8 seconds. 20 divided by 8, which gives 2.5 amperes. What is resistance? Resistance is anything that will resist a current. Right? That is, it is opposition to flow of electric current in an electric circuit. जैसे फ्रिक्शन अपोज करती है मैकेनिकल मोशन को, रेजिस्टेंस अपोज करती है इलेक्ट्रिक करंट को, और इट इज़ मेजर्ड इन ओम्स. दैट इज इट्स यूनिट्स आर ओम्स, विच इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम. और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कौन सी इक्वेशन से? वो इक्वेशन हमें ओम्स लॉ से मिलती है. And what is Ohm's law? It is a law which gives us the relationship between resistance, voltage and current, and it was formulated by Ohm. What does this law state? इस law की statement है that current in a conductor is linearly proportional to the difference of potential between any two points, and it is inversely proportional to the resistance provided physical conditions such as temperature, pressure, area of cross section remain unchanged. So mathematically we can write it as I is equal to V over R, where I is current in amperes, V is voltage in volts, and R is the resistance in ohms. Let's talk about the effects of electric current. Now when an electric current passes through a conductor, a variety of effects may be produced. कैसे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? रेडिएंट इफ़ेक्ट्स, थर्मल इफ़ेक्ट्स, केमिकल इफ़ेक्ट्स, मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स या फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स. सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिएंट इफ़ेक्ट्स.
रेडिएंट इफेक्ट्स कैसे, क्या है रेडिएंट इफेक्ट? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू दी लाइट एनर्जी। इसका एग्जांपल बल्ब है। बल्ब के अंदर टंगस्टन फिलामेंट होती है। जब टंगस्टन फिलामेंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो देन व्हाट हैपन्स, दे हीट द वायर एंड इट गिव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ विजिबल लाइट। और लेकिन इसमें जो फिलामेंट है इट शुड नॉट बी सराउंडेड बाय एयर, इट शुड बी इन वैक्यूम। इसलिए जो बल्ब है उसमें से एयर रिमूव कर देते हैं। अगर एयर होएगी तो क्या होगा, जो मेटल फिलामेंट है वो ऑक्सीडाइज होएगी और बर्न अप हो जाएगी, राइट। द सेकेंड इफेक्ट इज थर्मल इफेक्ट्स। थर्मल इफेक्ट्स क्या है कि जो द इफेक्ट्स विच प्रोड्यूस हीट, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स, आयरन्स कपड़े प्रेस करने वाली, टोस्टर्स, हीटर्स, हीटिंग पैड्स एंड इलेक्ट्रिक कॉटरीज। सो ये इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका कौन सा इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट, जिससे वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक कॉटरी। इसका क्या यूज़ होता है कि जब ऑपरेशन के टाइम या सर्जरीज़ के टाइम ब्लीडिंग होने लग जाती है तो हम इस कॉटरी को यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पे कोएगुलेट कर लें, कोएगुलेशन हो जाए और जो स्मॉल ब्लीडिंग वेसल्स हैं उनसे ब्लड स्टॉप कर जाए। सो these instruments are used to prevent hemorrhage, for example in brain surgery। ये किस चीज़ पे काम करते हैं, लो एम्पियरेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स को यूज़ करते हैं। ना नेक्स्ट इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट क्या है कि आपको पता है कि जब हम करंट को पास करेंगे एक सोल्यूशन में से जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है तो केमिकल चेंजेस अकर होंगे। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे डीज आर इलेक्ट्रोलिसिस, जो ये प्रोसेस है इसको यूज़ करते हैं हम डिस्ट्रॉय करने के लिए हेयर फॉलिकल्स को ऑफ द अनवांटेड हेयर। और ये कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं हेयर फॉलिकल्स, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। एंड इस चीज़ में स्किन को, पेशेंट की स्किन को या पर्सन की स्किन को कोई डैमेज नहीं होता। अब दूसरा केमिकल इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, जब कोई अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हाट हैपन्स, जब इलेक्ट्रिक करंट हमारे सर्किट में हो जाता है, हमारे प्राइवेट होम्स के या इंस्टीट्यूशंस के, तो इतना कई बार करंट हो जाता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लग गया जी उसको। वो क्या होता है कि जब पर्सन या तो कैसे होगा, अगर पानी में खड़ा है कोई पर्सन और कोई अप्लायंस है जो कि जिससे कि क्या हुआ कि पैसेज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो इलेक्ट्रिक जो पर्सन खड़ा हुआ है जो इसमें पानी में, वो एक पैसेज बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जब बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो वो क्या करती है, वेगस नर्व विच इज़ द 10th क्रेनियल नर्व, उसको स्टिमुलेट कर देती है। और इस हद तक स्टिमुलेट कर देती है कि द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, बिकॉज then vagus nerve stimulation is doing what, it is suppressing the activity of the heart। तो इस हद तक हार्ट स्टॉप हो जाता है काम करना कि पर्सन की डेथ हो जाती है। और दूसरा क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी बॉडी से तो केमिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाती है टिश्यूज से, उससे भी क्या होता है, डेथ हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर है, कि ऐसा एपरेटस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने घर में कितने ही मॉडर्न डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, जैसे फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, सोइंग मशीन्स, पॉलिशर्स, टाइपराइटर्स, एंड इन हॉस्पिटल्स यूज़ होता है इन ऑपरेटिंग सक्शन मशीन्स, सेंट्रीफ्यूग्स एंड फॉर मैनी अदर थेरेपेटिक ऑपरेटर्स। इस मोटर में होता क्या है, एक रोटेटिंग कॉइल है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से करंट पास किया जाता है एंड दिस कॉइल नोन एज आर्मेचर रोटेट्स। जब ये रोटेट करता है तो ये पावर प्रोड्यूस करता है विच कैन बी यूज टू डू वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, राइट। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। एंड देन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। उसका एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एग्जाम्पल है एक इंटरडिपेंडेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है। जो सारी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर देयर ऑपरेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या,
ये एक कॉइल का कॉम्बिनेशन है ऑफ अ वायर एंड अ कोर ऑफ आयरन और स्टील। एक आयरन या स्टील की कोर, जैसे कि एक पेन ले लो, उसके आसपास अगर हम वायर घुमा दें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। जब इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, देन दीज लाइन ऑफ फोर्सेस दैट पास आउट इन ऑल डायरेक्शन आर कलेक्टेड इन कोर, राइट? So each molecule of this core acts like an independent magnet and combined these form a large magnet. तो इनको यूज़ करने से, इस टेक्निक को यूज़ करने से magnet with many times the strength of an ordinary magnet can be formed. So जो ये large electromagnets हैं, they can be used to raise extremely heavy masses of iron and still for short distances. और भी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स में, बजर्स में, टेलीफोन्स में एंड अदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में। दैट इज़ ऑल अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द ह्यूमन बॉडी। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू बॉडी इज़ बिलीव्ड टू कॉज एडवर्स इफ़ेक्ट्स। अब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि the source of electricity is not complete and the contact resistance cut down the amount of electric current that flows, और इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, right? But when the contact resistance is low, the flow of current is high. जैसे कि if a person is standing on wet ground या पानी में ही खड़ा है, तो contact resistance to ground क्या हो गई? low. जब ये कंटैक्ट रेजिस्टेंस लो है तो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स करेगा बॉडी में, जैसे कि टिश्यूज़ की भी डैमेज कॉज कर सकता है और इवन डेथ भी कॉज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि वेगस नर्व इस हद तक स्टिमुलेट हो जाती है दैट इट सप्रेसेस द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट और द पंपिंग ऑफ द हार्ट और बीटिंग ऑफ द हार्ट। ऊपर से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट इज़ ऑल्सो ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रिक इंजरी। अगर करंट करेगा जो फ्लो कर रहा है ब्रेन के थ्रू, इफ़ इट्स लार्ज देन अनकॉन्शियसनेस में अकर। दूसरी बात है, इवन रेट्रोग्रेड एमनीजिया इज़ एक्सपीरियंस्ड एंड द पेशेंट रिमेंबर्स नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट्स। और अगर क्रेनियल नर्व्स डैमेज हो जाएं तो सेंसरी हेल्यूसिनेशंस प्रोड्यूस होती हैं एंड ब्लाइंडनेस एंड डेफनेस हो सकती है। अगर डैमेज हो जाए रेटिना तो ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर डैमेज हो जाए ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इन द ईयर, इन द इंटरनल ईयर, देन डेफनेस विल अकर। और डेथ हो सकती है, एक कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो सकती है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट से भी डेथ हो सकती है। So these are the effects of electric current on human body. I hope you have understood this topic. If you have any questions regarding this topic, please leave a comment in the comment section. या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्प्लेड है नीचे स्क्रीन पर। Thank you. Thanks for watching. God bless you all.